हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने पहले भूटान सीरीज के 3 वीडियोस में बताया है, आई ट्रैवल टू भूटान फ्रॉम बैंगलोर टू अंडरस्टैंड रादर एक्सपीरियंस कि भूटान को वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों कहा जाता है। अगर आपने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे देन आई विल लिंक दोस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू पारो। गुड मॉर्निंग, इट्स अनदर डे इन भूटान। सो अर्ली मॉर्निंग अब मैं यहाँ आ गया हूँ वेयर इट्स द बेस कैंप जहाँ हम टाइगर नेस्ट टेम्पल के लिए हाइक करेंगे। थोड़ा ये स्ट्रेट नहीं होगा, इट विल बी समवॉट लाइक दिस बिकॉज हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। एंट्री फी इसकी 1000 रुपीज़ है एंड इफ यू वांट अ स्टिक लाइक अ वॉकिंग स्टिक इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज़ पर स्टिक। गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर द हाइक? ओके, वहाँ जाके देखते हैं कितने लोग, अभी भी एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही है। So let's start the trek to the most gorgeous monastery where I'll take you through every detail that you need to know before you do the trek yourself. At the base of the valley, for a fee, there are horses available for rent. You can sit comfortably on horseback to reach the cafeteria about midway up the trail, then continue hiking from there. To descend the mountain though, you will have to do it on foot. Horse rides are not available there. To be honest, अगर मेरे से पूछोगे तो I wouldn't suggest you to take a horse and do the hike because the hike to Tiger's Nest is considered a pilgrimage. So according to Bhutanese culture, you will accommodate a very good merit for yourself if you get to the monastery on foot. If you were to ride an animal to shorten the journey, in the spiritual sense, you are split in the merit with the animal for making the animal suffer for your convenience. And of course, as a believer in merit and karma, I would agree with this and I wouldn't suggest you to take the animal or make it suffer for that. Guys, तो basically अगर आप यहाँ आ रहे हो और आप कुछ खाने पीने की चीज़ें ला रहे हो तो प्लीज़ उसे इधर उधर मत फेंकना. This is a very clean city, so let's just keep it this way. As you can see, there is a garbage designated place. यहाँ पे आप फेंक सकते हो, तो please do that. Please use this. And you know, as a tourist, we have a responsibility. So please keep that in mind. Thank you. So guys, this marks the middle point of the hike. This is the cafe where we are going to have our lunch. और यहाँ हम थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ी एनर्जी लेंगे, then we'll move ahead to the temple. So guys, this is the halfway of the trek. और यहाँ पे एक कैफ़े है जहाँ पे आप रुक करके you have some coffee, कोई कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, आप कुछ खाने के लिए खा सकते हो, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रैक, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ करके थोड़ा से आराम करो. दिस द व्यू पॉइंट जहाँ से आपको टेम्पल दिख रहा है, आप वहाँ पे पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हो. For half an hour you can stay over here, take some rest and then continue the trek to the temple. So this was the cafeteria and now we'll continue with our trek. This was the middle point, so it's gonna take 2 to 3 hours again from here. I don't know how I'm going to do it, but let's see. Well, to be extremely honest with you guys, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बट इसके आगे मुझे थोड़े फटीक होने लग गया था. एक तो एकदम धूप हो गई थी और चलते चलते भी एकदम मैं थक गया था. इनफैक्ट मैंने स्टिक भी नहीं ली थी, स्टूपिड मी. बट मैंने वहाँ पे बहुत सारे 60-70 ईयर ओल्ड्स को भी देखा, जिनकी वजह से मेरा हौसला बना रहा. हेलो सर. Hello. Is this the first time you've come to Bhutan? Yeah, of course. And this is the first time you're doing this hike? Yeah. No. Trekking I've gone many times. Many times. And what is your age? I'm 67 years. Oh my God, you are giving me so much motivation. Being here, I'm struggling and you are doing it so well. Thank you so much for motivating us. Thank you. Thank Have you. a good day. Thank you. Wish you the same. Thank Bye. you. Bye. Guys, जैसा आप देख सकते हैं मैं हाफ रहा हूँ, तो दिस ट्रैक इज़ नॉट स्लाइटली ईजी, तो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट हेल्दी टू कंप्लीट दिस. तो आप उसके हिसाब से ही देख करके आना, या फिर अगर आपका हो पा रहा है तो आप ये जो मिड पॉइंट है कैफ़े वाला, वहाँ तक ही आए. वहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से भी आप फोटोग्राफ ले सकते हैं. द ओनली थिंग इज़ यू वोंट बी एबल टू एंटर द टेम्पल, बट यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हेल्थ एंड देन टेक अ डिसीजन. Guys, so this is one of the viewpoints for the temple. और देख सकते हैं सामने ही हमारा ब्यूटीफुल टेम्पल है.
ऐसा लग रहा है मेरा जो हाइक की थी इतनी मेहनत से एकदम गिरते पड़ते जैसे मैं आया हूँ, इट्स ऑल वर्थ इट। और अभी तो मैं पहुँचा भी नहीं, आई वांट टू सी एंड गो एंड सी इनसाइड कैसा है, सो लेट्स जस्ट गो। दिस इज़ अनदर व्यू पॉइंट, यहाँ से भी बहुत अच्छी फोटोज़ आ रही है। आप देख सकते हैं दिस इज़ द टेम्पल, और आप यहाँ खड़े होकर के बिल्कुल आराम से फ़ोटो क्लिक कराइए। थोड़ा आराम करिए बिकॉज ये शेड में है, ये पेड़ खड़ा है यहाँ पे, और उसके बाद नीचे जाकर के टेम्पल भी विजिट करिए। सो बेसिकली अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, फिर नीचे से वहाँ वो वाले सड़क पकड़ के स्टेयर्स से विल गो देयर। I know it's a lot and it really needs to be very very healthy to do it. I would suggest, क्योंकि आपको याद रखना है वहाँ पे 1 घंटा सब चीज़ करके हमें वापस भी जाना है, तो keep that in your mind, but this is really beautiful. दिस इज़ द टेम्पल, और मैं अंदर जा कर के मैंने सब कुछ देख लिया, हमने वाटर भी ले लिया, स्नैक्स भी ले लिया, आई एम फीलिंग ओके राइट नाउ। और अब मैं वापस जा रहा हूँ। मज़ा तो आया यहाँ पे, इट इज़ एन एक्सपीरियंस टू कम हियर एंड जस्ट प्ले फॉर योर सेल्फ, रियली लाइक इन इट। लेट्स गो। थोड़ा सा जाने में भी डिफ़िकल्ट है ये, बट विल गो। के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊँ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये स्टिक इट्स 100 रुपीज़ पर स्टिक, तो आप ये ज़रूर लीजिए। और आई वुड सजेस्ट कि आप पानी का बोतल तो ज़रूर लाइए, मल्टीपल पानी के बॉटल्स, कुछ खाने के लिए भी ले आइए, एंड आप अगर कुछ चॉकलेट्स वगैरह लाइए जिससे शुगर आप मेंटेन रख सके, वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज आपको ज़रूरत पड़ सकती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग, और आज हमारा लास्ट डे है भूटान में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा देख लूँ क्या है आसपास वगैरह। एंड इट्स सो पीसफुल ओवर हियर, यहाँ से पानी की भी आवाज़ आ रही है, देयर इज़ अ रिवर नियर बाय। बहुत आई एम गोना मिस इट सो मच। हालांकि कल मेरा ट्रैक फाइनली कंप्लीट हुआ और मैं वापस आया होटल, बट आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू व्लॉग एनीथिंग, इसलिए मैंने कोई व्लॉग किया नहीं उस दिन। बट टू बी ऑनेस्ट, to be honest, I saw many Indian families with their parents, their grandparents, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग भी, एंड मैंने थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश की, दे वर ऑल फ्रस्ट्रेटेड, और उन्होंने कहा कि दे आर नॉट गोना रिकमेंड दिस टू मोर पीपल इन देयर होम, बिकॉज ये थोड़ा टफ है, यू नीड टू बी ऑन योर लिटिल हेल्थियर साइड, और थोड़ा सा अगर ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस रहेगा तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल जस्ट लाइक मी। But if you ask me, was it all worth it? Yes, it was. It's not कि वहाँ पे टेम्पल था, वहाँ पे ये दर्शन किया, वो तो बहुत ही खूबसूरत होना ही था, बट इट्स मोर अबाउट द जर्नी। तो आई ऑल्सो गॉट एन एक्सपीरियंस ट्रैकिंग में का, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग का, तो मुझे अपनी लिमिटेशंस, अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चली है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप आओ, लेकिन हाँ, जस्ट कीप दैट इन माइंड कि यू नीड टू हैव दैट वुडन stick to balance yourself, that would be required। वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लेंगे। और दूसरा, कीप पेसिंग योरसेल्फ, और चलते रहे, बीच बीच में स्टॉप्स बनाए उन्होंने बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, बट आई गेस इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कैसे होगा। और बीच में कैफ़े भी आता है, वहाँ पे भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा देर 1-1.5 घंटा रुकिए और वहाँ पे कुछ खाइए पीजिए, उसके बाद ही अपना ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट करिए। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वापस भी उसी रास्ते जाना है। आई नो वापस जाते समय आसान है, बट देयर आर सम स्टेप्स, तो थोड़ा कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, ये भी सिचुएशन है। तो या दैट वाज ऑल अबाउट यस्टरडेज ट्रैक, और पूरा दिन लग जाता है इस पर, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आई जस्ट केम बैक टू द होटल एंड स्लेप्ट। ओह या, आई डिड गो टू द माउंटेन कैफे just for a smoothie or something like that. Apart from that, we came back to the hotel and had our dinner there. And today is a new day. आज हम लोग मोस्टली वो ट्रेडिशनल आउटफिट जो होती है भूटान की, वो पहनेंगे।
वो एक्चुअली एडेड नहीं था हमारे आइटिनरी में, बट वी रिक्वेस्टेड आवर गाइड टू डू इट. सो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं. अगर आपका गाइड बहुत अच्छा है तो आप उससे जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये 2-3 चीज़ें हमें जानना है, तो ही कुड मेक टाइम और समथिंग लाइक दैट. अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो आप ग्रुप से बात करके भी एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, जैसे हमारे में हो रहा है. इनफैक्ट हमारा जो गाइड है मिस्टर ताशी, इज़ अ वंडरफुल गाइड. मतलब बहुत बहुत अच्छा है. आई विल लीव ऑल हिज डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई होप आप लोग जाकर के उससे उन्हीं से ले, क्योंकि उन्होंने बहुत 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 अच्छा कर दिया. द स्टोरीज ही टेल इतने डिटेल में होती है, बैकग्राउंड कल्चरल जो भी है बहुत अच्छे से बताते हैं. ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड लवली गाय. सो उससे मुझे लगता है कि आपकी ट्रिप बहुत आसान हो सकती है, क्योंकि भूटान की ट्रिप आप बिना गाइड के नहीं कर सकते हैं, ये सब आपको पता ही होगा. तो बेसिकली अगर हमारा गाइड कोई अच्छा हो, सूत्रधार इस ट्रिप का कोई अच्छा हो, तो पूरी ट्रिप ही अच्छी हो जाती है. And yeah, that's about it. I'll just stroll over here for some time and then get back to the hotel and get ready. This is the place called Dress for Hire, just behind me. और यहाँ पे हम लोग पहनेंगे ट्रेडिशनल भूटान ड्रेस और थोड़े से फोटोग्राफ्स क्लिक कराएंगे और थोड़ा सा देखेंगे कैसे ये लोग पहनते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा कल्चर के बारे में जानेंगे, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. अभी मैं उतर गया हूँ बस से. यहाँ पे दिस द व्यू पॉइंट ऑफ द एयरपोर्ट. और यहाँ पे फ़्लाइट बहुत कम चलती है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, बिकॉज़ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लैंड करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है. तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फ़्लाइट पायलट्स यहाँ पर आकर के फ़्लाई करते हैं. और जस्ट आई विल शो यू अराउंड. आई टर्न द कैमरा एंड शो यू, बट दिस इज़ द व्यू. Everyone is a little sad because we had so much fun and now it's time for goodbye. But I'm happy that I'll be going home with so many memories, learning so much about Bhutan and the importance of traveling together. I did come on this trip alone, but I will be going home with a bunch full of people who I can proudly call my friends. Guys, we are back in India! And just like that, we have come to an end of our journey in Bhutan. This was my last video in the Bhutan series. I hope मेरे videos ने आपको थोड़ा बहुत तो motivate किया होगा to visit the world's happiest country, Bhutan. आप मानो या ना, लेकिन इस जगह में आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने मिलेगा जो दुनिया में शायद ही कहीं और मिलेगा. मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन से जल्दी. Till then, subscribe to my channel, press the bell button, and I'll see you in the next video. Goodbye.